بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام طلبہ و طالبات خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے 12ویں جماعت کی نئی کتاب کا ایک سبق لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے قحط الرجال، اور اس کے مصنف ہیں مختار مسعود۔ یہ سبق ماخوذ ہے ان کی ایک کتاب آواز دوست سے۔ اس میں ہم آپ کے سامنے آج اس سبق کو مکمل تفصیل سے وضاحت کریں گے اس کی، اور مشکل الفاظ، اور آخر میں پھر کثیر الانتخابی سوالات بھی حل کریں گے۔ ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیے گا تاکہ سبق سارا آپ کو سمجھ میں آ جائے اور آپ کو اس سے فائدہ بھی حاصل ہو۔ تو چلتے ہیں تعارف مصنف کی طرف۔ مختار مسعود 15 دسمبر 1926 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ مختار مسعود نے علی گڑھ ہی میں بنیادی تعلیم حاصل کی اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ایم اے کیا۔ پاکستان بننے کے بعد ان کے والد شیخ عطا اللہ نے اس سرزمین سے ہجرت کا فیصلہ کیا۔ مختار مسعود بھی اہل خانہ کے ہمراہ پاکستان آئے۔ سول سروس میں وہ مختلف اعلیٰ عہدوں پر رہے، کئی اداروں کی سربراہ اور وفاقی سیکریٹری بھی رہے۔ جس زمانے میں لاہور میں مینار پاکستان زیر تعمیر تھا، اس وقت اس کو یادگار پاکستان کہا جاتا تھا۔ اسی دوران مختار مسعود لاہور کے کمشنر بن گئے اور انہوں نے اس کا نام مینار پاکستان کروا دیا، کیونکہ یادگار تو مرنے والوں کی ہوتی ہے اور پاکستان ایک زندہ حقیقت ہے جو ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ۔ اب ہم آتے ہیں سبق کی طرف۔ سبق کا شروع ہے کہ قحط میں موت ارزاں ہوتی ہے، سستی ہوتی ہے، اور قحط الرجال میں زندگی۔ پہلے یہ قحط الرجال کا معنی کیا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ سمجھدار لوگوں کی کمی۔ مرگ انبوہ کا جشن ہو تو قحط، مرگ موت کو کہتے ہیں، انبوہ مانے زیادہ، یعنی زیادہ لوگوں کی موت کا جشن۔ حیات بے مصرف کا ماتم ہو تو قحط الرجال، ایک عالم موت کے ناحق زحمت کا، دوسرا زندگی کی ناحق تہمت کا، ایک سما حشر کا، دوسرا محض حشرات الارض کا۔ زندگی کے تعاقب میں رہنے والے قحط سے زیادہ قحط الرجال کا غم کھاتے ہیں، یعنی زندگی کے اندر جتنے بھی مسائل آتے ہیں ان میں سمجھدار لوگوں کی کمی ہی انسان کو زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ 13 ستمبر 1938 کا ذکر ہے کہ میں مسلم یونیورسٹی ہائی اسکول میں 5ویں کا طالب علم تھا۔ والد محترم نے فرمایا کہ آج ایک چینی مسلمان عالم ہمارے گھر چائے پر آئے گا، مجھے چاہیے کہ اس سے ملوں اور اس کا آٹوگراف حاصل کروں۔ مہمان کی آمد کی وجہ سے گھر میں سب مصروف تھے، مگر اس تجوید کے بعد، اس رائے اور اس کام کے بعد میری مصروفیت دوسروں سے کچھ زیادہ بڑھ گئی۔ نہ میرے پاس آٹوگراف البم تھی، نہ آٹوگراف حاصل کرنے کا تجربہ۔ میں اس کے آداب سے بالکل ناواقف تھا اور واقفیت حاصل کرنے کے لیے صرف 2 گھنٹے ملے تھے۔ میں بازار گیا، وہاں فوٹوگرافر کی بہت کے یہاں بہت سے البم پڑے تھے۔ مجھے نیلے رنگ کی یہ چھوٹی سی آٹوگراف البم بہت پسند آئی، جس میں مختلف رنگوں کے صفحات لگے ہوئے تھے، اور جلد پر البم کا لفظ سنہرا چھپا ہوا تھا۔ اس کی قیمت صرف 6 آنے تھی۔ اس وقت بھی وہ البم مجھے قیمتی لگا اور میں آج بھی اسے بیش قیمت سمجھتا ہوں۔ البتہ ان دنوں وجہ کچھ اور تھی اور ان دنوں وجہ کچھ اور ہے، یعنی اس وقت تو وہ ایک نایاب چیز تھی، اور اب اس کے بعد اس کے اندر جو آٹوگراف ہیں تو اس کی وجہ سے اس وقت سپہر جب میں نے نامانوس خال و خط کے مہمان، یعنی خد و خال کے مہمان کے سامنے اسے پیش کیا تو بڑی مانوس مسکراہٹ اور شفقت سے انہوں نے
मेरी तरफ देखा, कुछ बातें अब्बा जान से की और कलम हाथ में लेकर चीनी जबान में 3 सत्रें 3 लाइनें लिखी। फिर उनका लफ्जी तर्जुमा अंग्रेजी में कर दिया और दस्तखत करके एल्बम मुझे वापस कर दिया। मैं बहुत खुश हुआ, हालांकि न चीनी समझ में आती आई न अंग्रेजी। हर अच्छे आदमी के गिर्द एक हाला होता है, यानी लोगों का एक हुजूम होता है। उसके नज़दीक जाएं तो दिल खुद ब खुद मुनव्वर हो जाता है। आज मैं रोशनी के इस हलके में पहली बार दाखिल हुआ। अपने अंधेरे छटते हुए महसूस हुए। ये खुशी के साथ ताज्जुब की बात भी थी। उस चीनी प्रोफेसर ने चीनी जबान में लिखना शुरू किया तो मुझे हैरत हुई कि सतरें ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं। हैरत उस वक़्त दूर हुई जब ये समझ आया कि हर अच्छी बात इल्हामी होती है, अल्लाह ताला की तरफ से दिल के अंदर डाली जाती है, इसको कहते हैं इल्हाम। और इल्हाम नाजिल हुआ करता है। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने चीनी ज़बान में मेरी एल्बम में जो कुछ लिखा था उसकी कद्र व कीमत मुझे बहुत दिनों के बाद मालूम हुई, और ये बहुत से दिन मैंने एक तलाश में सर्फ किए। मोहम्मद इब्राहिम शाकियू चिन तो दस्तखत करने और चाय पीने के बाद रुखसत हो गए। वो एक तवील सफ़र पर निकले हुए थे। ये वो मेहमान जो इनके यहाँ आए थे उनका नाम था, और उनके दस्तखत की बदौलत मैं भी एक तवील सफ़र पर निकल खड़ा हुआ। मेरा ये सफ़र आज भी जारी है। शुरू में ये बहुत बड़ी आसान बात लगी कि किसी बड़े आदमी के दस्तखत हासिल किए जाएं, मगर यूं ही मैंने दूसरा वर्क उल्टा और सोचने लगा कि अब किसके ऑटोग्राफ लिए जाएं तो बात हाथ से निकल गई। यानी सोच में पड़ गया कि अब मैं क्या करूं। मैंने वालिद मोहतरम से रहनुमाई चाही तो हिदायत मिली कि ऑटोग्राफ एल्बम के सफ़ात हों या ज़िंदगी के औराक सादा, उन्हें यूं ही नहीं भरना चाहिए। जाओ निगह इंतखाब को काम में लाओ। यानी मतलब यह है कि अपना इंतखाब करो कि किस से तुम्हें ऑटोग्राफ लेना है। अपनी ज़िंदगी के मशागिल लिखो कि तुम्हें ज़िंदगी में किस चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ के पीछे जाओ। निगह इंतखाब का माना यह है। बड़े आदमी ज़िंदगी में कम और किताबों में ज़्यादा मिलेंगे। उनसे तारुफ के लिए कार्लाइल से मदद मांगो, ये भी एक आदमी है। उनसे मुलाकात के लिए प्लूटार्क के पास जाओ। उनको समझने के लिए सादी से लेकर समोइल समाइल तक सबके दरवाजे पर दस्तक दो। राह का निशान इतना वाज़ेह मिला तो सफ़र शुरू किया। ये नहीं है, उनके वालिद ने कुछ चंद बड़े लोग थे जो उनको नाम बताए कि इनसे अब तुम मिलो, चाहे किताबों में हो या चाहे हकीकत में हो। पहले पहली मंजिल न अजीम मुसन्निफ थे न ज़ख़ीम किताबें, बड़ी मोटी किताबें। ये सफ़र तो बच्चों की कहानियों की छोटी सी पगडंडी पर शुरू हुआ। स्कूल में इनाम तकसीम हुए तो एक किताब जिसका उन्वान था बहादुर लड़का मेरे हिस्से में आई। ये एक वलंदेजी बच्चे की कहानी थी। वलंदेजी हॉलैंड, हॉलैंड के रहने वाले, उनको वलंदेजी भी कहते हैं। जो सरमा की एक शाम समंदरी पुश्ते पर जा रहा था। पुश्ता यानी जैसे आपने देखा हो किसी समंदर या किसी नदी नाले को रोकने के लिए उसके गिर्द एक बंद बांधा जाता है, चौड़ी सी एक दीवार होती है, 2-2.5 फुट की। तो उसकी की बात कर रहे हैं कि जा रहा था, उसकी नज़र एक छोटे से सुराख पर पड़ी। उसने सोचा कि वो गांव जाकर उसकी खबर करेगा तो इतनी देर में पानी के जोर से पुश्ते में शगाफ पड़ जाएगा, फट जाएगा, और फिर वो सारी बस्तियां और वो सारे खेत जो सतह समंदर से नीचे हैं गर्क हो जाएंगे। वो इस सुराख पर हाथ रखकर बैठ गया। रात आई तो वो इसी हालत में सो गया। पहले सर्दी और फिर मौत से इसका जिस्म अकड़ गया, मगर नन्हा सा हाथ जूं का त्यों पुश्ते के सुराख से छोटे से सुराख पर रखा रहा। सुबह हुई तो लोगों ने देखा कि उनका मोहसिन एक बहादुर लड़का है। जो सफ़र की ये पहली मेरे सफ़र की ये पहली मंजिल थी। उसका नक्श दूसरी सारी मंजिलों से गहरा और रोशन है। ये मंजिल
जुर्रत और कुर्बानी की मंजिल थी। इसके बहुत से नाम हैं, और वो नाम जिससे इसकी सारी अजमतें आया होती हैं, वाज़े होती हैं, शहादत कहलाता है। मैंने ऑटोग्राफ एल्बम का वर्क पलटा और वो सादा निकल आया। अगले दो चार वर्क भी सादे थे। इसके बाद कुछ और दो दस्तखत हैं, उनमें उनके बाद बहुत से वर्क खाली थे। ये एल्बम मैंने 34 बरस पहले खरीदी थी और उसे मुसलसल इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके बावजूद इसके निसफ सफ़ात आधे खाली हैं। पिछले 3 दहाइयों में सरकर्दा अफराद, यानी जिन अफराद एक नामवर थे या जो काबिल ज़िक्र अफराद थे, गोल दर गोल मिले हैं। इन्हें बहुत करीब से देखा, मगर अभी तक ये एल्बम नहीं भरी। ये माजरा क्या है? मतलब कहने का यह है कि हर आदमी से ऑटोग्राफ ले या नहीं जाता, हर आदमी ऑटोग्राफ लेने की काबिलियत नहीं रखता, और हर आदमी, मशहूर आदमी, आपके दिल को नहीं लगता कि आप उससे ऑटोग्राफ लेंगे। आखिरी कहानी है ये इस सबक की। शेख यूसुफ यूसुफ सबरेली ने, जो इब्ने अरबी के मुर्शिद थे, उस्ताद थे, एक स्याह बिल्ली पाली हुई थी। शेख की सोहबत में ये बिल्ली तस्किए बातिन की मंजिल तय कर गई थी, यानी लोगों के अंदरूने हालात, लोगों के दिलों का हाल जानती थी। वो बेहुनर से नफरत और बेगर्ज से उल्फत करती थी। बेहुनर मतलब ये कि एक बेकार आदमी है, वैसे ही आ गया है, किसी मकसद से नहीं आया। और बेगर्ज से उल्फत का मतलब ये है कि वो जो शेख के पास महज फ़ायदा और इस्लाह के लिए आता था, उससे मोहब्बत करती थी और उन दोनों की शनाख्त कर लेती। अलिया मिलने आते तो अदब से बैठी रहती, कोई बेज़ौक आ निकलता तो ये उठकर चली जाती। मैंने बहुतीरे चाहा, मैंने बहुत ज़्यादा चाहा कि कल्ब में कुछ खासियत व खसलत इस स्याह बिल्ली की पैदा हो जाए, यानी मेरा दिल भी इसकी तरह लोगों को पहचानने में लग जाए। उसका रंग तो आ गया, मगर इसकी मर्दम शनासी ना आई। कोशिश अलबत्ता जारी है, और इसकी नौयत यह है कि मैंने जब भी अपने ऑटोग्राफ एल्बम को इस्तेमाल के लिए रखा, पहले दिल में झांका, अगर बिल्ली उठकर चली जाए तो मैं एल्बम को जेब से बाहर नहीं निकालता। ये सबक था आपके सामने। अब ये उसके कसीरुल इंतखाबी सवालात हैं। तहत में मौत होती है अरज़ां सस्ती, एल्बम की कीमत थी 6 आने। मुसन्निफ के ख्याल में हर अच्छी बात होती है इल्हामी। लफ्ज़ कहतुर्रिजाल का मतलब है कौम में दाना लोगों की कमी। मुसन्निफ के नज़दीक एल्बम आज भी बेशकीमत है, उम्दा तहरीरों की वजह से। ये था तलब और तालिबात सबक, जो हमने आपके सामने मुकम्मल वजाहत के साथ रख दिया। उम्मीद करते हैं कि आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे और इसको दूसरों से भी ज़रूर शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप तमाम तलबा और तालिबात को कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।